Welcome, students. Today, our topic of discussion is gymnosperms. Now, we all know that the plant kingdom is divided mainly into 5 groups. Number 1, algae. Number 2, bryophytes. Number 3, pteridophytes. Number 4, gymnosperms. And the fifth one is angiosperm. So, today we are going to study about gymnosperms. Now, what are gymnosperms? See, the word gymnosperm means naked seed. Okay, the word gymnos is contains the meaning, that is, it means naked. Okay, which means without any covering, and sperm is relatable to seed here. Okay, so the gymnosperm literal meaning is naked seed. Now, why it is called naked seed is, like, we know about the flowering plants. Like, for example, if you take the example of any fruit, any common fruit which you eat. Okay, so what is the thing there, that if I ask you, or if I ask any lame person, that where do you find seed? So obviously the very first answer will be what? That seeds are present inside the fruits, isn't it? That means that in the flowering plants, the fruits are covering the seeds, isn't it? The fruits form a protective covering around the seeds, and the fruits, they develop from where? They are actually the ovary of the flowers. Means in the flowering plants there is the presence of flower, there is the formation of fruit, and inside the fruit there is present a seed, isn't it? This is a general characteristic of a flowering plant. Okay, but in gymnosperm there is something different. They do not have flowers. Okay, so if they are not having flowers, obviously the seeds, if they are not having flowers, there will be no formation of the fruit. Okay, but there are formation of seeds in them. Okay, there are no flowers in the gymnosperms. Okay, and when there is no flower, there will be no ovary. When there will be no ovary, there will be no fruit. And when there is no fruit, that means the seeds will be present, but they will be naked. तो यहाँ पे नेकेड वर्ड का मतलब क्या हुआ कि सीड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सीड्स जो है वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड नहीं है, वो एज इट इज़ ओपनली जो है वो क्लस्टर्स में फाइंड होते हैं ऑन द जिम्नोस्पर्म ट्री or gymnosperm plants. Okay, so gymnosperm means naked seed. These plants do not have flowers, and so the seeds are not enclosed inside any specialized structure like the ovary seen in the other group of plants, that is angiosperms. Rather, the seeds develop on the surface of the reproductive structures of the plants, thus are visible as cones on maturity. Okay, sometimes we can find the seeds on small stalks too. So the main difference between the angiospermic plant and gymnospermic plant is कि gymnosperm अगर आपको कहीं भी flowers दिखे, ठीक है, कलरफुल flowers हो या any kind of flowers हो, छोटे हो बड़े हो, any sort of, that means that particular plant is belonging to the group एंजियोस्पर्म. लेकिन अगर आपको कोई ऐसे पेड़ दिखे जहाँ पे आपको सिर्फ सीड्स दिखाई पड़े, एंड दैट टू वो सीड्स जो हैं वो एक एक सीड्स नहीं, अलग अलग नहीं दिखते हैं प्लांट्स में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, एक ग्रुप में होते हैं, और उस ग्रुप वाले सीड्स को हम क्या बोलते हैं? कोन्स बोलते हैं. तो जिम्नोस्पर्म, जब भी वर्ड आपको whenever you listen of the word gymnosperm, that means number one is they are not having seed. Okay, sorry, they are having seed, but the seeds are naked. And number two, why they are naked? Because they are not having any flowers. So if they are not having flowers, there will be no formation of the fruits. So the fruits will be so the seeds will be what? They will be naked without any fruit covering. Okay, now you also must be knowing कि सीड को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं ओव्यूल, और फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी, isn't it? तो दैट मीन्स ओव्यूल इज इनक्लोज्ड इनसाइड एन ओवरी. ठीक है, ओव्यूल इज सीड एंड ओवरी इज फ्रूट. तो फ्रूट के अंदर सीड होता है या ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है.
ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल या सीड जो होता है वो क्या होगा, नेकेड होगा, दैट इज़ विदाउट एनी कवरिंग ऑफ द फ्रूट और ओवरी. ओके, this you can see, this is an example of a gymnosperm. This plant is a cycas plant. ठीक है, cycas है ये, and this cycas is an example of gymnosperm. It is commonly seen in the gardens and in outdoor plant in the along the cities and all. Now this you can see, this is a figure of a pinus tree. They are having very needle like leaves. You can see they are needle like leaves, and in between you can see there's a cluster of seeds which is known as cones. Now let's see into detail the features of gymnosperm. So let's see the features of gymnosperms. Gymnosperms have an evolutionary significance and show some unique features. Now why they are having an evolutionary significance? Like evolutionary means what? It the development which is very slow and gradual and has taken years for the development. Isn't it? Evolution का मतलब क्या होगा कि the very slow and gradual changes जो बहुत सालों से चलते आए हैं और अब जाके उसमें मतलब चेंजेस आते गए हैं. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है क्योंकि इससे पहले के जो तीन प्लांट्स हमने वी हैड स्टडीड अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दो फेजेस थे लाइफ के, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. इज़न्ट इट? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जिसमें से गैमेटोफाइट भी डोमिनेंट हो सकता था या स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो सकती थी, व्हाटएवर द केस. लेकिन कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. इज़न्ट इट? There was no presence of seed in those three cases, but from the gymnosperm the concept of seeds has taken origin. Okay, so that is why they are having evolutionary significance. Now their characteristic feature is the absence of flowers and the presence of naked or open seeds. Now if you look back at this figure of cycas, you can see this figure. Now can you see any flower in this? No, there is no flower. Similarly here also, can you see any flower here? No, there is no flower, only the presence of seed. Isn't it? That means the characteristic feature is the absence of the flower and the presence of naked or open seeds. As they do not have flowers, consequently fruits are also absent in these groups of plants. That means if you are asked what are the characteristics of gymnosperms, so number one, they are having no flowers, they do not produce flowers, they do not produce fruits, but they produce seeds, and those seeds are naked, means they are present without any covering of the ovary or the fruit. ठीक है. Then next characteristic is that the main source of pollination and dispersal is by wind. क्योंकि flowers होते नहीं है कि वो insects attract हो उनसे. ठीक है, प्लस उनमें जो है देन वाटर पॉलिनेटेड हो नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, अच्छे खासे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. तो मेन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है इनमें? विंड है. ठीक है, these are generally medium to large trees with a few shrub species also present. Okay, so gymnosperm can be either they can be medium size or they can be large trees, या कुछ species इनके छोटे छोटे shrubs भी हो सकते हैं. Okay, one example is given. Sequoia is a gymnosperm which is one of the tallest tree species. Okay, this question has been asked in NEET also, that sequoia is a gymnosperm which is one of the tallest tree species. Okay, next, the plant body shows differentiation and is divided into leaves, stems and roots. The leaves are needle-like with a thick cuticle and sunken stomata as seen in conifers. This feature helps in the reduction of water loss due to transpiration. Actually, the cycas and pinus and all, they grow in very water scarce areas, either in the hilly areas, okay, or in the those areas where
वाटर इज़ नॉट वेरी अबंडेंट. ओके, सो वहाँ पे अगर कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो क्या होगा कि उनके अंदर से पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी, वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी. तो उसको चेक करने के लिए उनके अंदर कई सारे अडेप्टैशंस होते हैं, और वो अडेप्टैशंस क्या हैं कि उनकी जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी, नीडल लाइक आई ऑलरेडी शो यू इन दैट पाइनस picture that the leaves are what they are. The pinus, you can see the leaves are very thin, needle like. Okay, so why it is so? Because the reduced surface area of the plants help in reduction of the loss of water during transpiration. ओके, उसके अलावा क्या इनमें अडेप्टेशन होती है वाटर लॉस के अगेंस्ट, कि इनका जो एक इनके लीव्स पे, इनके जो प्लांट सरफेस उस पर एक थिक क्यूटिकल की लेयर होती है. क्यूटिकल लेयर इज़ द वैक्सी लेयर अराउंड द एपिडर्मल लेयर ऑफ द प्लांट्स सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट इनमें जो अडेप्टेशन होती है टू रिड्यूस द वाटर लॉस इज़ द प्रेजेंस ऑफ sunken stomata. Stomata we all know कि it is a space between या ओपनिंग बिटवीन द टू गार्ड सेल्स. ठीक है, तो जब गार्ड सेल्स स्वेलअप होते हैं बीच में एक होल प्रोड्यूस होता है, और उसी होल या उसी स्पेस से जो है वाटर वेपर प्लस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इज़न्ट इट. तो जितना ही संकन स्टोमेटा होगा, ठीक है, जितना ही श्रिंक होगा स्टोमेटा, उतने ही वाटर लॉस क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बहुत ही कम होगा, isn't it? So this is some of the method to reduce or to check the loss of water due to transpiration. Then the plant body is differentiated fully differentiated into leaves, stems and roots. ठीक है, like proper leaves, they are having proper leaves, stems and roots. Bryophytes and algae में हमने क्या पढ़ा था, the body was more or less thallus-like, thalloid body, isn't it? But here they are having a well differentiated leaves, stems and roots. Now if we talk about the root system present in the gymnosperm is the tap root system. Okay, the roots present in gymnosperm, so what, that is tap root. You all must be knowing a tap root. What is a tap root? That there is one main thick root and side में क्या होते हैं secondary roots होंगे, फिर tertiary roots, root hairs and so on, isn't it? Now in some gymnospermic plants, the roots have an association with fungi and form a symbiotic relationship, and that relationship is known as mycorrhiza. Okay, for example in पाइनस की जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट होते हैं, लेकिन उनके रूट्स में जो है वो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, फंगस के साथ. तो इसका मतलब कि द रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड द फंगस टुगेदर फॉर्म अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन. सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों बेनिफिट होंगे एक दूसरे से, और उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा. जैसे कि वी हैड स्टडीड ऑलरेडी लाइकेंस. व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंगस, और यहाँ पे क्या है, विद द रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड फंगस. ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फंगस क्या प्रोवाइड करेगा, और वाटर एंड न्यूट्रिशन मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराएगा किसको, टू द रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म. एंड इन एडिशन जो रूट्स होंगे वो क्या कहेंगे कि इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम. दैट इज़ नोन एज माइकोराइजा एंड दिस इज प्रेजेंट और फाउंड इन जिम्नोस्पर्म पाइनस. सो दैट इज़ important. Mycorrhiza is important, and where it is found in the roots of pinus tree. Then also in a few other species of cycas plant, the roots are in the form of specialized roots called coralloid roots, and they are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. Okay, पाइनस में क्या होता है, टैप रूट होगा और किससे एसोसिएटेड होगा, फंगस से, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन. ठीक है, साइकस में क्या होगा कि इनकी रूट्स जो है वो कोरलॉइड रूट्स होती है, थोड़े से फाइबरस टाइप्स होगा रूट्स. ठीक है, और उनके अंदर किसका एसोसिएशन होगा, उनकी जड़ों के अंदर उनमें स्पेशल रूट्स होते हैं. साइकस के जो रूट्स हैं वो फाइबरस टाइप के होते हैं और उनको हम कोरलॉइड रूट्स कहते हैं. और ये कोरलॉइड रूट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जिनका काम क्या होगा, टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू दोज साइकस प्लांट. आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट नाइट्रोजन
फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़फुल कंपाउंड में कन्वर्ट करना जिसको प्लांट्स यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज, वो क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर से जो है या सॉइल से जो है वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके साइकस प्लांट को प्रोवाइड कराएंगे, और साइकस इन रिटर्न क्या करेगा, उसको मिनरल और न्यूट्रिशन या वाटर मिनरल न्यूट्रिशन वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, उसको वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो साइकस में रूट्स कैसे होते हैं, कॉरलाइड रूट्स, और पाइनस में कैसे रूट्स होंगे, माइकोराइजल रूट्स। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट एंड मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू, ओके। Now these plants are also vascular with both xylem and phloem being present. They are having both the xylem and phloem vessels. इसीलिए इनकी हाइट जो है वो बहुत टॉल हो सकती है, क्योंकि xylem vessels जो है वो वाटर और मिनरल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। Now let's move on to the reproduction and fertilization in gymnosperm and the life cycle of gymnosperm. Now the main plant body of a gymnosperm is a sporophyte. We all know what is a sporophyte. Sporophyte symbolizes that it is diploid in nature, okay. तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है जिम्नोस्पर्म की, दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। Now you can see here that the presence of male and the female cones, okay, you can see here males and female cone, it is written here, and those male and female cones, what are they are actually the gametophytes, okay. So there is a little bit difference between the sporophyte and gametophytic structure of gymnosperms and pteridophytes or bryophytes. So let's see what's the difference. Actually the strobilus or the cone is the reproductive structure of gymnosperm, okay. This structure you can see the pink and the red structure जहाँ पे लिखा है मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये क्या है, कोन शेप में है। तो ये ही कोन जो होते हैं, दीज कोन्स, आई होप यू मस्ट हैव सीन दीज कोन्स स्पेशली इन द हिली एरियाज इफ़ यू हैव विजिटेड एनी हिली हिल स्टेशन एंड ऑल. So there is a huge number of gymnospermic trees along with the cones, isn't it? So the male and the female, this cone like structure is actually the reproductive structure of this gymnosperms, और उस cone को हम scientifically strobilus भी कहते हैं. Now there can be two conditions कि अगर मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई या मेल और फीमेल कोन जो है वो एक ही ट्री पे प्रेजेंट हो, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, सेम प्लांट पे, लाइक इन पाइनस, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, वो एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस, इजंट इट. दैट मीन्स पाइनस इज मोनोशियस. And if they are found on different trees as in cycas, so that will be known as dioecious, isn't it? When both the male and female organs are found on the same individual, that condition is monoecious, and when it is found on different organisms or trees or individuals, that condition is dioecious. So it has been asked in certain examinations that what is pinus. Pinus is monoecious in nature and cycas is dioecious in nature, okay. Then gymnosperm plants are heterosporous. One thing more, like we have studied ki gametophyte means they produce gametes, isn't it? And sporophyte means they will produce spores, okay. So like in bryophytes we have studied ki the gametophyte is the main plant generation, main plant body, ठीक है. गैमेटोफाइट इज़ द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स. टेरिडोफाइट में क्या होता है कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ठीक है. ब्रायोफाइट में वी हैव स्टडीड कि द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड द स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, इजंट इट. तो यहाँ पर भी चूँकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इसका मतलब कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल कोन्स हैं, जो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो मेल और फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, इजंट इट. मेल
cone will produce male spores and the female cone will produce the female spores. Okay, so the gymnosperm plants are heterosporous. Heterosporous means कि two types of spores are produced. ठीक है, one spores which is smaller in size and which will give rise to the male cone is known as the microspores. Okay, and those spores which are larger in size and they will produce female cone and they are produced from the female cones, so that is known as the megaspores. ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, वो मेन प्लांट बॉडी है. ओके, इसका मतलब कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है. ओके, इसका मतलब कि मेन प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. और वो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स मेल और फीमेल कोन्स में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, यू कैन सी द पिंक कलर ओवर हियर एंड द फीमेल इज़ रेड in color. You can see it is just a diagrammatic representation, they are not actually pink and red. Okay, basically they are brownish or yellowish in color. ठीक है, और they can be a little bit reddish also. तो बेसिकली जो मेल कौन होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स. और जो फीमेल कोन्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, थोड़े से लार्जर साइज़ के मेगास्पोर्स. ठीक है, माइक्रो मतलब ही स्मॉल होता है, मेगा मतलब बड़ा होता है. तो मेल कोन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल कोन इज़ प्रोड्यूसिंग द मेगास्पोर्स. ठीक है, तो अब दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स हो गए ना, इसीलिए जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं कि वो हेट्रोस्पोरस है. हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, स्पोरस मतलब स्पोर्स, मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो अलग टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स. अंडरस्टूड. So that is what it is written here कि they produce different spores which are haploid, microspores and megaspores. Now there is one term over here and that is haploid. अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइट दैट इट इज़ 2n डिप्लॉयड थी. जो मेल कोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, 2n है. एक्चुअली कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो लीव्स, कुछ लीव्स जो होती हैं, कुछ लीव्स जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और वो बजाय अलग अलग ग्रो करने के एकदम कॉम्पैक्ट मास में ग्रो करती हैं ऐसे. ठीक है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होके ग्रो करते हैं. तो इससे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कोन. ये कोन और कुछ नहीं है, कुछ स्पेशलाइज्ड पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं. ठीक है, जिनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. अंडरस्टूड. तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइड है, उसमें रूट्स है, स्टेम्स और लीव्स हैं. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि बजाय अलग अलग ग्रो करने के थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मास में ग्रो करती हैं और उनका जो शेप हो जाता है वो थोड़ा सा कोन लाइक हो जाता है. ठीक, तो कोन हो गया. अब इसी कोन के अंदर जो है वो क्या होगा, मियोसिस होता है. इस कोन के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा. और मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होगी, इस कोन्स के अंदर छोटे छोटे जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, इन कोन्स के अंदर क्या होंगे, मियोसिस होता है और छोटे छोटे क्या होंगे, वेरी स्मॉल इन साइज स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जो मेल कोन से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो फीमेल कोन से प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, मेगास्पोर्स. लेकिन उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ना कि डिप्लॉयड. क्यों, क्योंकि इस कोन के अंदर क्या हो रहा है, इस कोन के अंदर सेल डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्पोर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस, ये जो स्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर. ओके, सो दे प्रोड्यूस डिफरेंट स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. ठीक, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कोन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोन, फीमेल कोन है ये. ठीक है, नाउ यू कैन लेट्स सी अ डिटेल अबाउट मेल कोन्स. ठीक है, मेल कोन्स और द मेल स्ट्रोबेलाई हैव माइक्रोस्पोरोफिल्स which have the microsporangia that produce the microspores. Okay,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। मेल कोन्स को क्या बोलते हैं? मेल स्ट्रोबेलाई भी कहते हैं। अभी मैंने बताया, यू कैन सी हियर कि ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं। इन्हीं ग्रीन लीव्स में से कुछ लीव्स जो है वो ब्राउन कलर के मास में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जो लीव्स हैं वो बजाय इंडिविजुअली ग्रो करके वो क्या हो रहे हैं, वो दे आर ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट मास। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोन, इजंट इट? तो बेसिकली अगर हम पूछे कि ये जो कोन बना है तो उसका ये एक एक स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम लीफ ही तो कहेंगे, है ना, क्योंकि लीफ ही मॉडिफाई हुआ है कोन बनाने में। तो इस लीफ को अब हम लीफ ना कह के क्या बोलेंगे? मेल कोन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेल कोन है तो इस लीफ को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, ये जो लीफ होगी मेल कोन की, जो लीफ होगी कोन्स की, ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं इन लीव्स को हम क्या बोलेंगे? दीज लीव्स विल बी नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, कोन की जो लीव्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। अब एक माइक्रोस्पोरोफिल को अगर हम ऑब्जर्व करें अलग से तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सॉरी, आई एम ड्राइंग अगेन, वेट। Okay, if we observe a single microsporophyll तो हमें मिलेगा कि वहाँ पे एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? जो कोन्स की जो लीफ है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और जो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल में उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही होता है जिसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होता है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, सॉरी, ओके, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और उसके अंदर एज ए रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होंगे? वेरी टाइनी स्मॉल लीव्स, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होंगे? वेरी स्मॉल माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, दैट मीन्स नाउ आई एम अगेन टेलिंग कि जो कोन्स की एक लीफ होगी उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, फिर उस एक माइक्रोस्पोरोफिल या उस एक लीफ के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और बनता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और उस मियोसिस सेल डिवीजन से हैप्लॉइड क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, तो हैप्लॉइड क्या बनेंगे? हैप्लॉइड छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ठीक, नाउ सम ऑफ दीज इस माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमीट्स, और यही जो छोटे छोटे अंदर स्पोर्स बनेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, यही माइक्रोस्पोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू पॉलन ग्रेन्स। नाउ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पॉलन ग्रेन्स, इजंट इट? अगर फ्लावर में पॉलन ग्रेन देखा होगा कैसा होता है? येलो कलर का पाउडरी। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो कैसा दिखेगा? बहुत ही टाइनी स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं वो। ठीक है, पाउडरी, बहुत ही माइल्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, स्मॉल राउंडेड स्फेरिकल शेप के होंगे। तो अब बात समझ में आई कि ये जो मेल कोन है, सॉरी, द मेल कोन, दिस मेल कोन
ठीक है, वो क्या है एक्चुअली, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव्स जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजियम है सिंगुलर, स्पोरेंजिया है प्लूरल। ठीक है, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस, और वही स्पोर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोल सकते हैं, या उसको हम पॉलन ग्रेन्स बोल सकते हैं। तो यू कैन सी ना कि ये इस कोन्स में से छोटे छोटे जो निकल रहे पाउडरी स्फेरिकल बॉडीज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बोल रहे हैं, जो एक्चुअली में क्या है, दे आर मेल गैमेटोफाइट, दे आर मेल गैमीट्स। मन में आई बात। तो ये मेल गैमीट्स, और हमको पता है कि गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे गैमीट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे गैमीट्स जो है वो मेल कोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए मेल कोन को हम क्या बोल सकते हैं, या मेल कोन के जो लीव्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलन या पॉलन ग्रेन को भी हम गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बेसिकली मेल कोन है, मेल कोन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्मॉल लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है मियोसिस, जिससे प्रोड्यूस हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल pollen grains, or they are actually the male gametes. Understood? Now if we come to the फीमेल कोन्स, सो द इसी तरह से फीमेल का जो कोन बनेगा, वो जो पत्तियां होंगी उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल ना कह के अब क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मतलब क्योंकि फीमेल स्ट्रक्चर हमेशा थोड़ा सा लार्ज होता है, चाहे गैमीट्स हो या स्ट्रक्चर हो। ठीक है, सो मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन्स में क्या रहते हैं, तो अब हम पत्तियों को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, दे फॉर्म अ क्लस्टर एंड दे आर नोन एज फीमेल कोन्स और फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या होगा कि जो फीमेल मेगास्पोरोफिल होगा उसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा। ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, छोटे छोटे मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, और यही हैप्लॉइड मेगास्पोर्स क्या होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होंगे कि ये जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं वो क्या होंगे कि हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के अंदर, ठीक है, ये क्या था, मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरेंजियम है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, मेगास्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, अब इस मेगास्पोर के अंदर, ठीक है, क्या होगा, फर्दर मियोटिक डिविजन्स होंगे। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ये सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझने को कर सकते हैं कि ये मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरेंजियम है, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, मेगास्पोर। दिस मच इज क्लियर। ओके, और इसी मेगास्पोर को हम इन अदर वर्ड चाहे तो क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसी में यही क्या है, इट इज़ हैविंग द फीमेल गैमीट। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन कि फर्टिलाइजेशन का टाइम पे क्या होगा कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे गेट डिस्पर्स्ड टू द विंड एंड रीच द फीमेल कोन्स। द pollen grain develop a pollen tube which grows towards the archegonium. ठीक है, so what will happen कि during the fertilization कि जो pollen grains था, you can see the picture over here, कि मेल कोन्स में से pollen grain रिलीज हो रहे हैं, और फीमेल कोन्स, you can see here the diagram is given, फीमेल कोन्स है, फीमेल कोन्स के अंदर जो लीव्स होते हैं, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर ऐसे इस शेप के
गैमीटोफाइट प्रोड्यूस होगा या मेगास्पोर जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये हवा के थ्रू या विंड के थ्रू जो है वो डिस्पर्स होके इस फीमेल कोन पे डस्ट होंगे और दे विल रीच द गैमीटोफाइट जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल एग इज़ प्रेजेंट। देन दिस पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट है और जो ये फीमेल गैमीट है ये दोनों फ्यूज़ करेंगे एंड आफ्टर फ्यूजिंग दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विच विल डेवलप इनटू अ सीड। ओके, तो फिर क्या होगा कि ये जो सीड अभी तक फीमेल कोन रिप्रेजेंट हो रहा था, जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसमें, तो जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रूट जो है वो पक जाता है, राइप हो जाता है, उसी तरह जब कोन जो है फीमेल कोन्स पकने का या राइप होने का मतलब क्या है कि उनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो उनके जो कोन्स के लीव्स थे मेगास्पोरोफिल वगैरह वो सब डीजनरेट हो जाएंगे एंड इंस्टेड ऑफ दिस दे विल बी हैविंग अ वेरी क्लोज्ड कोन विच विल बी मेड अप ऑफ सीड्स, ठीक है। ये जो फीमेल कोन है, अब इस फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल और गैमेटोफाइट वगैरह ना होके अब क्या होगा कि दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सीड्स। समझ में आई बात? तो फिर से आई एम रिपीटिंग कि मेल कोन है दैट विल प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स, फीमेल गैमीट है दैट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स और द एग। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल कोन्स पे जाएंगे, डस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ विंड एज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा कि जो ओव्यूल था या गैमेटोफाइट था वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेवलपिंग इनटू अ सीड। और जो फीमेल कोन अभी तक मतलब फीमेल कोन जो रिप्रेजेंट हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कोन मेड अप ऑफ सीड्स। ओके, so that is basically what happens after fertilization, ठीक है। So once again, when the pollen grains are released from the microsporangium, they get dispersed through the wind and reach the female cones. The pollen grain develop a pollen tube which grows towards the archegonium. Archegonium, you all know, that is a female sex organ. Okay, now the discharge of the male gamete happens near the mouth of the archegonium. The fusion of the male and the female gametes occurs, and after fertilization, a zygote develops to form the embryo, and the ovule forms the seed. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लीफ थी इसके अंदर ये मेगास्पोरेंजियम था, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। और मेगास्पोर्स के अंदर क्या था, एग था, ठीक है। तो दैट एग विल नाउ फर्टिलाइज टू बिकम एम्ब्रियो और जो ये ओव्यूल्स थे वो अब किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड्स, ठीक है, वो छोटी छोटी सीड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ जिम्नोस्पर्म. So this was all about gymnosperm. Okay, hope you all must have understood. Thank you.